गुड मॉर्निंग बच्चों. चैप्टर 4 of unit 1 is reproductive health. Reproductive health means a total well-being of a person in physical, emotional, behavioral and social aspects of reproduction. Means all those aspects which affect the natural act of reproduction in a person are considered in reproductive health. Reproductive health of a person is affected by genetic disorders. If a person is having some disorders, inborn disorders by birth, they affect the reproductive health. If the person is having some deficiency diseases from the birth, they also affect the reproductive health of a person. Any kind of infection in the reproductive organs or reproductive parts may be called as RTIs, reproductive tract infections. They also affect the reproductive health of a person. Lifestyle of a person, which includes food, type of food taken by them, water, rest, exercise and habits of an individual. All these included in lifestyle. They also affect the reproductive health of a person. Now come to problems and strategies. Reproductive health से related, there were some programs run by Indian government. Two such important programs were first RCH, Reproductive and Child Health Care Program, and second was Family Planning Program. इन प्रोग्राम्स के मेन एम क्या थे? फर्स्ट, to provide information, guidance and to help the mother before and after delivery of child. Child delivery के पहले means 9 month जो कि gestation period होता है, उसमें किसी भी तरह की medical help provide करना, guidance provide करना और information provide करना, और after delivery of the child दोनों को, the न्यूली बॉर्न चाइल्ड एंड द मदर, दोनों को केयर करना एंड प्रोवाइडिंग हेल्प, मेडिकल काइंड ऑफ हेल्प. दिस वाज द एम ऑफ फर्स्ट एम ऑफ these programs, RCH program and family planning program. Second aim was to ensure safe delivery of infant and postnatal care. Delivery safe हो, बच्चे को और मदर को दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और पोस्टनेटल केयर मीन्स आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड दोनों की केयर की जाए. दीज वर द एम ऑफ दोज प्रोग्राम्स. थर्ड एम वॉज टू प्रोवाइड फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट्स एंड prophylaxis against anemia and vitamin deficiency if any. इम्यूनाइजेशन करना बच्चे का. Immunization means vaccines against some of specific diseases, जैसे पोलियो है, डिप्थीरिया है, बहुत सारी डिजीज़ के लिए हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है. इनके अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और एक प्रॉपर एज होती है इनको बच्चे को ओरली और इंट्रावेनसली दिया जाता है. सो वैक्सीनेशन प्रॉपर करना, दैट इज कम अंडर इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट्स. एंड प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट एनीमिया, एनीमिया के सिम्टम अगर नज़र आते हैं या कोई विटामिन डेफिशिएंसी के सिम्टम नज़र आते हैं तो उसको प्रॉपर टाइम पर चेक करना इन द न्यूली बॉर्न बेबी. दैट वाज द एम ऑफ दीज प्रोग्राम्स. फोर्थ एम वाज टू एजुकेट द न्यूली वेडेड कपल about the advantages of a small family and help them in doing so. Proper means of contraception के बारे में उनको बताना और स्मॉल फैमिली के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन न्यूली वेडेड कपल्स को प्रोवाइड करना. फिफ्थ एम वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस among people about adolescence and associated changes.
safe and hygienic sexual practices and sexually transmitted diseases prevailing in the society. लोगों को एडोलेसेंट और उससे रिलेटेड चेंजेस के बारे में बताना, एडोलेसेंट्स को, यंग इंडिविजुअल्स को, और सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी देना, और जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेज हैं उनके बारे में उनको बताना. These were the aims of those programs, and the programs were RCH, Reproductive and Child Health Care Program, and Family Planning Program. Okay, now it's a very important issue, that is population explosion. Population इतनी ज़्यादा कैसे पहुंची, या चाइना के बाद हम सेकंड हैं और मे बी वेरी सून वी मे क्रॉस चाइनीज़ पॉपुलेशन. इसके कारण क्या क्या रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या रीजंस हैं उसके पीछे. सबसे इम्पॉर्टेंट है इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़. हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं. अभी वही पीछे बात की हमने, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम्स चलाती है अपनी हेल्थ सेंटर्स के थ्रू कि प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर इज़ प्रोवाइडेड टू द मदर एंड द चाइल्ड बोथ. सो टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट हो गया है एंड उससे लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव हो गई हैं, और उसका सीधा इफ़ेक्ट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ पर पड़ा है. पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई है. इसके 4 इम्पॉर्टेंट रीज़न बताए जाते हैं. फर्स्ट, डिक्लाइन इन डेथ रेट. डेथ रेट कम हो गई है. अगेन मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव होने से, अवेयरनेस बढ़ने से डेथ रेट कम हो गई है. डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, मीन्स डेथ ऑफ मदर ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग जेस्टेशन और ड्यूरिंग बर्थ ऑफ चाइल्ड, दैट इज़ डिक्लाइंड, कम हो गई है मेडिकल फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने से. डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, डेथ ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और पोस्ट डिलीवरी, that has also declined due to again improved in medical facilities or the healthcare programs. And fourth was increased number of people in reproductive age. population के increase होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि रिप्रोडक्टिव एज में जो लोग हैं उनकी संख्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है. देखिए एज वाइज regarding reproduction, people या population can be divided into 3 groups: pre-reproductive age, reproductive age and post-reproductive age. Pre-reproductive, less than 21 years of age, pre-reproductive बोलेंगे. Starting from 21 years of age and till then the person is able to produce children, that is reproductive age, and after that it is called post reproductive age. So more number of individuals in our population are in reproductive age. That is also a major cause of population explosion. Now अब इसके ओवर पॉपुलेशन के consequences क्या क्या होंगे, क्या इफेक्ट होंगे. फर्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फूड क्राइसिस होगा. पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, लैंड, ज़मीन फॉर एग्रीकल्चर, फॉर फूड प्रोडक्शन इज़ लिमिटेड, और लिमिटेड रहने के साथ साथ वो कम और होगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि लोग ऑक्यूपाई करेंगे उस ज़मीन को रहने के लिए. सो स्पेस भी क्राइसिस बढ़ेगा, धीरे धीरे जगह की कमी होती जाएगी. एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, अभी भी हम सुनते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा कोविड-19 की वजह से भी छिन रहा है, लोगों का कम हो रहा है एम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, इसका एम्प्लॉयमेंट
कम होने का बहुत बड़ा कारण है। हम उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एसेंशियल गुड्स एंड पॉवर्टी। एसेंशियल गुड्स, ज़रूरत की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी, उससे क्राइसिस होगा और गरीबी बढ़ेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल गो डाउन इफ इट कम्स टू ओवर पॉपुलेशन। सेकेंड, एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। एनर्जी क्राइसिस मतलब एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई एनर्जी की लिमिटेड हो सकती है या कम होगी। Increase in population has created greater demand for energy in terms of fuel, petrol, diesel, wood, fossil fuels, again fossil petroleum and coal, etc. फ्यूल्स की डिमांड और फॉसिल फ्यूल्स और वुड और एनर्जी सोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी और हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। एंड लास्ट, इको डिग्रेडेशन। इको डिग्रेडेशन मीन्स एनवायरनमेंट में जो एयर क्वालिटी है, जो सॉइल क्वालिटी है, जो वाटर क्वालिटी है, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, दैट विल गो डाउन। इट मे बी ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल, रेडिएशन पॉल्यूशन और सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन की नहीं होने से इकोलॉजी or ecosystems will get degraded or destroyed due to human interference. It is called anthropological intervention or the degradation of the ecosystem by human activities. That will also be attracted by overpopulation, more number of individuals in our country. That is about this population explosion. Thank you very much.